आईएसआई अधिकारी के मोहम्मद का बड़ा खुलासा। A Muslim should appreciate the fact that even after giving a separate country, Pakistan, for Muslim community, if India is a secular country today, it's only because of Hindu majority. Had it been a Muslim majority country, it would never have been a secular country. के मोहम्मद बोले ज्ञानवापी मस्जिद पर दावा छोड़े मुस्लिम। Muslims should give up two more important historical places. These are the temples also. Number one is Mathura, which is the birthplace of Lord Krishna. And the second is Gyanvapi, which is associated with Lord Shiva. काशी मथुरा अपनी मर्जी से सौंप दे मुसलमान। These are the two important places which Muslims should hand it over to Hindu community for constructing a magnificent Hindu temples. इंडिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे यानी एएसआई के पूर्व रीजनल डायरेक्टर के मोहम्मद ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मुसलमानों को दो और ऐतिहासिक जगह छोड़ देनी चाहिए जो मंदिर भी है। पहली मथुरा जो भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है और दूसरी ज्ञानवापी जो भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। के मोहम्मद ने कहा कि ये जगह मुसलमानों को हिंदू समुदाय को भव्य हिंदू मंदिर बनाने के लिए सौंप देनी चाहिए। मथुरा काशी हिंदुओं के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए है। क्या कुछ और कहा उन्होंने, सुनिए। I had said Muslims should give up two more important historical places, and these are the temples also. Number one is Mathura, which is the birthplace of Lord Krishna, and the second is Gyanvapi, which is associated with Lord Shiva. So these are the two important places which Muslims should hand it over to Hindu community for constructing a magnificent Hindu temples. The question is why? Because these two important places are as important for Hindus as Makkah and Medina are for Muslims. तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, हालांकि उन्होंने ये सुझाव भी दिया कि हिंदू समुदाय को अयोध्या, वाराणसी और मथुरा के अलावा हर मस्जिद के पीछे नहीं जाना चाहिए। दोनों समुदायों के नेतृत्व को कुछ शर्तों पर सहमत होना चाहिए। के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नॉर्थ जोन के रीजनल डायरेक्टर के तौर पर 2012 में रिटायर्ड हो चुके हैं। वे 1976 में बीबी लाल की उस टीम का हिस्सा थे जिसने बाबरी मस्जिद की खुदाई की थी। के ने कहा कि आपको कम्युनिस्ट इतिहासकारों से इन सब बातों पर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहले के मामले में भी इरफान हबीब जैसे कम्युनिस्ट इतिहासकारों और जेएनयू के कुछ लोगों ने ही इस मुद्दे को उलझाया था। मुस्लिम समुदाय का एक हिस्सा राम जन्मभूमि सौंपने के लिए भी तैयार था, क्योंकि मैंने कई लोगों से बात की थी, इसलिए हमें इन जो है इसमें नहीं उलझना चाहिए था। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। Muslims should appreciate the fact that even after giving a separate country, Pakistan, for Muslim community, if India is a secular country today, it's only because of Hindu majority. Had it been a Muslim majority country, it would never have been a secular country. So this fact also Muslims should realize, and they should understand it, and there should be certain gestures from their side. So the concession should come out from the Muslim community willingly. You should not speak about all these things with the communist historians, because in the earlier case also it was the communist historian like Irfan Habib and some few JNU people who had complicated the issue. Muslim community, section of the Muslim community was ready to hand over the Ram Janambhoomi also, because I had spoken to many people. So we should not bring in this communist historian. They would complicate the issue and they would poison the mind of the Muslims also. And the Hindu leadership and Muslim leadership, they should come to certain terms and conditions. And at the same time, what Hindus should do is, they should not beyond these three. They should not go behind every mosque. जैसे कि आपने उनका बयान सुना, ने कहा कि हमें कम्युनिस्ट इतिहासकारों को नहीं लाना चाहिए, वे इस मुद्दे को उलझा देंगे, मुसलमानों के दिमाग में जहर भर देंगे। के जो है मोहम्मद ने
इस मामले को लेकर जानकारी दी, बताया कि 73 साल के आर्कियोलॉजिस्ट के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के समय एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्हें अक्सर जान से मारने की धमकियों का सामना करना पड़ता है। वे केरल से कोझिकोड में अपने घर पर ही रहते हैं। केके ने भी बताया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बैन होने से पहले तक कोझिकोड में बहुत ज्यादा एक्टिव था। जब से केके ने बाबरी मस्जिद से मिले नतीजे के बारे में बताया, तब से वे खतरे का जीवन जी रहे हैं। रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ साथ आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद को भी निमंत्रण मिला था, लेकिन बीमारी के चलते वे नहीं जा सके थे। वहीं अयोध्या विवाद पर भी उन्होंने बातचीत की और अयोध्या विवाद पर भी बात करते हुए के मोहम्मद ने 1976 में बीबी लाल की अगुवाई में बाबरी मस्जिद की खुदाई में खुद के शामिल होने के बारे में बताया। कहा कि यह विवाद एक कम्युनिस्ट इतिहासकार के असर की वजह से बढ़ा। उनके मुताबिक कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने मुस्लिम कम्युनिटी को इस बात के लिए मनाया कि वो मस्जिद के नीचे मंदिर होने के सबूत को खारिज कर दे। के मोहम्मद के मुताबिक ज्यादातर मुसलमान शुरू में विवादित जगह पर मंदिर बनाने की इजाजत देकर मामले को सुलझाने के पक्ष में थे। मोहम्मद ने कहा कि इतिहासकार आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे और खुदाई के किसी भी स्टेज पर वो उस जगह पर नहीं गए थे। उन्होंने झूठी बातें फैलाने की आलोचना की और उस समय लोगों की राय पर असर डालने वालों के बीच सीधी जानकारी की कमी की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि उस समय जरूरी समय में कम्युनिस्ट इतिहासकार ने इन सब चीजों में दखल दिया और फिर मुस्लिम समुदाय को यकीन दिलाया कि प्रोफेसर लाल ने उस जगह की खुदाई की थी और उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे मंदिर के पहले से होने का पता चले। तो ये उनकी बनाई हुई चीज थी, इसीलिए मुसलमानों के पास कोई और रास्ता नहीं था। वे कभी उस जगह पर नहीं गए थे, ना खुदाई के पहले, ना खुदाई के दौरान और ना ही खुदाई के बाद। इसीलिए बिना सब जग जाने वे इस तरह की झूठी कहानियां फैला रहे थे, इसलिए किसी को तो इसका जवाब देना ही था। इसीलिए पहली बार प्रोफेसर बीबी लाल, जिन्होंने टीम को लीड किया था, उन्होंने इसका करारा जवाब दिया। ताजमहल के बारे में भी उन्होंने बातें की। उन्होंने कुछ हिंदू ग्रुप्स के आरोपों को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि ये पूरी तरह से झूठा है। मोहम्मद ने जगह को ऐतिहासिक ट्रांसफर के बारे में विस्तार से बताया, ये देखते हुए कि असल में राजा मान सिंह का महल था, जिसे बाद में जय सिंह और फिर शाहजहां को ट्रांसफर कर दिया गया और इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बीकानेर और जयपुर म्यूजियम में सुरक्षित रखे गए हैं। के मोहम्मद ने इस बयान को हिंदू संतों और बड़े बीजेपी नेताओं का समर्थन मिला है। इस मामले में पूर्व भाजपा सांसद रामविलास दास वेदांती ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार्य बताया है। उन्होंने यहां तक कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी ऐसी ही भावना व्यक्त कर चुके हैं। वेदांती ने याद दिलाया कि पहले भी यह प्रस्ताव दिया गया था कि यदि देश के मुसलमान इन 3 मुख्य स्थानों को छोड़ दे तो हिंदू पक्ष चौथे स्थान की मांग कभी नहीं करेगा, लेकिन उस समय यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया था। वहीं महंत वरुण दास ने भी इस बात पर जोर दिया कि ज्ञानवापी एक विशुद्ध हिंदू शब्द है। उन्होंने दावा किया कि काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर आज भी एक हिंदू मंदिर के पूरे अवशेष मौजूद है। संतों और नेताओं का मानना है कि ज्ञानवापी जैसे विवादित स्थलों को हिंदुओं को सौंपकर मुस्लिम समुदाय को देश में शांति का नया अध्याय शुरू करना चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये बड़ा बयान जो है उनके द्वारा दिया गया है। तमाम आपने बयान भी सुन लिया है और अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।